আজকের ওয়ার্কশপটা কি নিয়ে? আজকের ওয়ার্কশপটা কি নিয়ে? হ্যালো, সেলিং অর সেল। সেলের আমি যতটুকু জানি দু তিনটে স্পেলিং আছে। একটা কি এস এ এল, তারপর কি এটা হচ্ছে এস এ এল ই, সেল তো ওটাও সেল। আর এটা হচ্ছে এস ই এল এল, সেল। আরেকটা সেল আছে, হ্যাঁ, তার মানে কি সেলিং। যারা ওই প্রথম দুটো করবে না তাদের জীবন থেকে সমস্ত কিছু থার্ড সেলিংটা হয়ে যাবে। থার্ড সেলিংটার মানে কি বয়ে যাওয়া জীবন থেকে সমস্ত কিছু, জীবনের স্বপ্নগুলো, জীবনের ইচ্ছাগুলো, জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বয়ে চলে যাবে। সরি, একটু আমি চলে এলাম। ডায়েরি যার যত ভালো লেখা হবে সে আজকে গিফট পাবে। ডায়েরি ওয়ার্কশপ মানে হচ্ছে, মানে এখানে আমরা কোনো মিটিং দেখতে যাই চুপচাপ শুনে চলে এলে হবে। ওয়ার্কশপ মিন্স শেখা, শেখার জায়গা। এখানে কেউ উইদাউট ডায়েরি লিখে যাব না, প্রত্যেকে ডায়েরি নিয়ে ভালো করে নোট করব। হতে পারে এরকম সেকেন্ড হাফে কাউকে, এখানে যারা যারা আছে তাদের মধ্যে কাউকে এখানে আসতে বলতে পারি, আসবে সে, এসে সেখানে তার ডায়েরি দেখা হবে, সে কিরকম করেছে না করেছে এবং সেটা সবাইকে দেখানো হবে। যারা যারা আছে প্রত্যেকের জন্য সেটা অ্যাপ্লিকেবল, যাকে খুশি ওটা দেখা হবে, রাইট? প্রত্যেকে খুব ভালো করে নোট নেবে। যাদের কাছে ডায়েরি নেই, যাদের কাছে ডায়েরি নেই, নোট নেওয়ার ইয়ে নেই, তারা সেটা জোগাড় করে নেবে। তার আপলাইন বা যারা যারা এনেছে তাকে তারা তাকে দিয়ে দেবে, প্রোভাইড করে দেবে যদি কারোর কাছে না থাকে। ওয়ার্কশপ মিন্স শেখার জায়গা, প্রত্যেকে ভালো করে নোট নেব, নিয়ে তারপরে আমরা দরকার মতো সেটা পরে কাজে লাগাবো। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো স্পেলিং তিনটে, এর আগে আমরা দুটো জানতাম, এখন থার্ডটা জানলাম। তিনটেই ইম্পর্টেন্ট, তিনটেও জানা খুব প্রয়োজন। আচ্ছা, সেলিং নিয়ে কার কার সমস্যা আছে? বিক্রিতে কার কার সমস্যা আছে? অর্ণব, আর সমস্যা? সমস্যা, প্রচুর সমস্যা, রিয়েলি গুড। এরকম ব্যাপার নেই যে সমস্যাটা চেয়ারে বসে কারোর আছে না, এখানে যে দাঁড়িয়ে বলছে তারও কোনোদিন ছিল বা এখনো হয়তো আছে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে ওরকম ব্যাপার। আচ্ছা, কি সমস্যা হয় সেলিং এ, মানে কি অসুবিধা হয় বিক্রিতে? কি অসুবিধা, কি অসুবিধা? একজন কেউ, কি অসুবিধা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কি অসুবিধা? লজ্জা করে, ঠিক। আরে বলতে লজ্জা কি সে বলি, बोलते लज्जा करे। और क्या प्रॉब्लम है सेलिंग में? की बोलबो, क्या बोलूं बिक्री करने के लिए, क्या बोलूं? और क्या समस्या है? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে বড় प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं अगर बेचना चाहूं, बोलना चाहूं, कुछ प्रोडक्ट देना चाहूं, वो क्या समझेगा, वो क्या बोलेगा, सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, मेरा बारे में क्या सोचेगा, मेरा सेल्फ इमेज उतर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना। मैं भी सोचता था, मैं भी कम भी नहीं हूं उसमें, आप जैसा सोच रहे हैं ना उसमें मैं एक बिंदु भी कम नहीं हूं। मैं भी 2012 साल में ऐसा ही था, आपके जैसा ही था। अभी भी बदल गया ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, उस जगह से थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है, वही मैं आज शेयर करूंगा। और उससे पहले जो मैं बताऊंगा, जैसे भैया ने बताया कि आज आप लोग फिजिकली और मेंटली, जैसे सुमन बताता है, आप टिल एंड यहाँ पर रह पाइएगा तो ये जितने भी समस्याएं है ना, जितने भी प्रॉब्लम है, ये यहाँ से सॉल्व होके जाएगा इस स्पीच के बाद नहीं। ये जो टोटल वर्कशॉप होगा ये कंप्लीट करके जाइए, मेंटली और फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट रह के, तो आपका जितने भी समस्या है, जितने भी सोच है, जितना भी प्री कॉन्सेप्ट है अबाउट सेलिंग, इट विल बी चेंज्ड। ये बदल दिए जाएगा, ये बदल जाएगा।
और आप सेलिंग में मास्टर बन जाइएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सेलिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये सेलिंग आज से नहीं है, जब से धरती है तब से सेलिंग स्टार्ट हो गया है। जब से धरती है ना तब से, एंशियंट टाइम से ये सेलिंग स्टार्ट हो गया है। और सेलिंग का कुछ मतलब, सब जगह हम लोग सेलिंग के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, कहीं कहीं बुरा सोचते हैं। और ये सेलिंग बहुत दिन पहले से, बहुत दिन जब से शुरू हुआ है, ये नोबलेस्ट एंड ओल्डेस्ट ऑफ द प्रोफेशंस। जितने भी प्रोफेशन है ना, जितने भी प्रोफेशन है, उसमें से ओल्डेस्ट, इससे पुराना कुछ प्रोफेशन है ही नहीं। बिक्री से ओल्डेस्ट कोई प्रोफेशन है ही नहीं। यही सबसे पुराना और नोबलेस्ट प्रोफेशन है, जितने भी प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन को हम लोग बुरा क्यों समझते हैं, वो भी जानेंगे। क्यों हम लोग इतना हिचकिचाते हैं, क्यों हम लोग ये सोचते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे और वो भी क्लियर हो जाएगा। इन लाइफ एवरीथिंग इज सेलिंग, एवरीथिंग इन लाइफ, whatever you are doing, anytime, anywhere, you are selling, except one place. Except one place. In the morning, where we will go? Yes, there is nothing selling. Except that place, everywhere you are selling everything. Everything you are selling. You know, आप जब बस पे सीट लेने के लिए किसी से पूछते हैं ना, किसे कैसे पूछते हैं, भैया कहां तक जाइएगा? What you are doing? You are selling. You are selling yourself to get the seat. तब तो शर्म नहीं लगता है। कुछ भी, जो कुछ भी आप करते हैं, सेल करते हैं। कोई तो होगा, प्रपोज किया है शादी के लिए किसी लड़की को या लड़का को, क्या है ना, खुद को बेचने के लिए प्रपोज करते हैं, शर्म नहीं लगता है तब? एवरीवेयर, हर जगह हम लोग बेचते हैं। अंडरस्टैंड द सेलिंग, वेयर आर यू सेलिंग एंड व्हाट आर यू सेलिंग? Where are you selling and what are you selling in life? सेलिंग है क्या? एक्सचेंज ऑफ सर्विस, प्रोडक्ट्स, आइडियाज, जहां पे सब कोई बेनिफिटेड होते हैं। अगर दो जन में सेलिंग और बाइंग होता है तो दोनों बेनिफिटेड होते हैं। दुनिया में आज तक कहीं भी बेचा गया है, कहीं पे खरीदा गया है, तो दोनों बेनिफिटेड होता है। ऐसा नहीं कि एक बेनिफिट, जो बेचता है वो ही बेनिफिटेड होता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सेल बंद हो जाता। बल्कि जो खरीदता है वो ज्यादा बेनिफिटेड होता है, उसका जरूरत ज्यादा है इसलिए वो खरीदता है। जो खरीदता है उसका जरूरत ज्यादा है इसलिए खरीदता है। सब कोई खरीदता नहीं है, सब कुछ। मैं तो साड़ी नहीं खरीदता हूं मेरे लिए, मैं शर्ट खरीदता हूं, तो ये शर्ट मेरे लिए जरूरत है इसलिए मैं खरीदता हूं। वो बेच रहा है इसलिए नहीं, मेरा जरूरत है इसलिए मैं खरीदता हूं। अनाज मेरा जरूरत है इसलिए मैं खरीदता हूं। जो कुछ भी हम लोग खरीदते हैं तो उसका जरूरत है इसलिए हम लोग खरीदते हैं। We have need, that's why we are buying. जिसका नीड नहीं है वो हम लोग खरीदते नहीं है, खरीदते ही नहीं है। कोई हमको अगर साड़ी बेचना चाहेगा तो कदाचित मैं मेरे लिए नहीं खरीदूंगा, क्योंकि वो मेरा जरूरत नहीं है। तो जो बेच रहा हो उसमें समस्या क्या है? जो हमको बेच रहा, तो मैं तो कुछ नहीं सोच रहा हूं, जो साथ बेच रहा हमको, तब तो नहीं समझते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यों समझते, वो डिस्कस करेंगे। तो द मेन पर्पस ऑफ सेलिंग
is to create a wealth in society through a concept, वो है सर्व लोकम हितम। ये सेल और बाइंग का जो कंसेप्ट है ना, यह है सर्व लोको हितम। मैं संस्कृत में उतना अच्छा नहीं, मैं कॉपी किया हूं। जिसमें सबका भला हो। ये सेल और बाइंग का प्रोसेस में सबका भला होता है, और ये आज से नहीं, जिस दिन से धरती हुआ उस दिन से ये सिलसिला चल रहा है। सेइंग और बाइंग में सबका अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि जो बेच रहा है उसका ही भला होता है, उसका ही बेनिफिट हो रहा है। ठीक, देखिए, अगर आप एक बार के लिए सोचिए कि दुनिया में सब कोई बेचना बंद कर देगा, सब कोई बेचना बंद कर रहा है, कुछ भी चलेगा दुनिया है? तो जो बेच रहा है अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? तो आप अगर बेच रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? तो हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? जब पुराना मतलब जब उतना डेवलप नहीं हुआ था, बड़ा बड़ा जहाज में भर के जो सब कंट्री थोड़ा सा डेवलप किया, आगे पहले डेवलप किया, और जो उतना डेवलप नहीं किया था, जहाज में भर के सामान लाता था उस सब देश में। वो समुंदर कितना दिन, 2 महीना 3 महीना 2 साल 3 साल चला के वो सामान लाता था, अपना लाइफ को मतलब इसमें रख के। क्यों लाता था उस देश में? कि उस देश का जो है उसको ये जरूरत है, इसलिए वो लोग लाता था, और वो सामान हम लोग लेते थे। जो जिस देश में लेके जाता था उस देश का वो आदमी लोग लेते थे। तो सेल इतना नोबेल काम है ना, इतना नोबेल काम है ना, तो हम लोग क्यों ऐसा सोचेंगे? जो भी खरीदते हम लोग को जरूरत है इसलिए खरीदते हैं। अब दिक्कतें क्या है यहाँ पे? इस बिजनेस में दिक्कत कहाँ है? सेल पे कहाँ दिक्कत है? सोच, किस नजरिए से देखते हैं सेल को? यहाँ पे क्यों दूसरे नजरिए से देखते हैं? सेल, यहाँ पे सेल को दूसरे नजरिए से देखते हैं। देखिए, ये हम लोग सबको जानते हैं, सबको जानते हैं सेल का बारे में। जो कुछ भी मैंने बताया ऑलमोस्ट सब कुछ हम लोग जानते थे, लेकिन यहाँ पे जैसे ही सेल का बारे में चर्चा होता है, आपको सेल करने के लिए बोला जाता है, तो आपको उसमें हिचकिचाहट होता है। क्यों? क्योंकि आपके जिस नजर से इस सेल को आप देखते हैं उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सामने से कोई बोला है सेल करने के लिए, आपका कोई वजह नहीं है, आपका कोई रीजन नहीं है। आप बेचिएगा, कुछ भी बेचिएगा, इस बेचने के लिए आपका कोई ठोस वजह नहीं है, रीजन नहीं है। आपका तो ठीक ठाक चल रहा था, अभी सामने से कोई आपका अपलाइन या आपका वेंडर बोल रहा है कुछ बेचना होगा, प्रोडक्ट्स बेचना होगा, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको भी पता है, ये बेचना है। लेकिन ये बेचने के लिए आपका पास कोई ठोस वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए हम लोग बेचना नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपके पास इसको बेचने के लिए कुछ वजह मिल जाएगा, तब आपको शर्म नहीं लगेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ये प्रोडक्ट। तो जो हम लोग देखते हैं, देखिए एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं। किसी ने कुछ दिन पहले घर बनाया, नया घर बनाया, प्लीज रेज योर हैंड। আপনি বানিয়েছেন? না, আপনারটা এক্সামটা হবে না। আপনি বানিয়েছেন, ঠিক? তো আপনি বাড়ি বানিয়েছেন, আপনি আপনার ছেলেকে বলছেন বাথরুমটা পরিষ্কার করতে, ও খুব হোল হার্টেডলি গিয়ে করবে পরিষ্কার? হ্যাঁ, আচ্ছা, বাথরুম পরিষ্কার করা খুব কি ভালো কাজ? খুব মানে দারুণ, কলার উঁচু করে আমরা ভাবি কি ওটা কলার উঁচু করাই কাজ? ওই কাজটা যারা করছে তারা না করলে আমরা নোংরা থাকবো। ওই কাজটা যারা করছে তারা না করলে আমরা নোংরা থাকবো, এই চকচকা থাকবো না। কিন্তু বাড়ির ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এখানে যারা আছি, বাড়িতে বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য আমরা কেউ আউটসাইডার
ইয়ে করি না, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু করি ওটা, করি কি না? কে করে? ঘরের কর্তা বা কর্ত্রী ছেলেদেরকে, নিজের ছেলে, তারও একদিন ওই বাড়িটা হবে, তারও একদিন ওই বাড়িটা হবে, তাকে যদি বলা হয় বাথরুম পরিষ্কার করতে, আমি যে ইন্টেন্সিটি নিয়ে, যে ভালোবাসা নিয়ে যে বাড়িটা বানিয়েছে, যে করে, ও কি করবে? ছেলে বা মেয়ে? বাবা বলছে, জোর করছে, বাধ্য করছে, তাই সে ওই বাথরুমটা পরিষ্কার করছে। ঠিক কি ভুল? রিয়েলি এটা সত্যি কি মিথ্যা? হ্যাঁ, তাই তো। কেন করছে না? কেন সে করছে না? এক্স্যাক্টলি ওর সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাই আসেনি যে এই বাড়িটা একদিন আমারই হবে, আমি যদি পরিষ্কার করে রাখি আমার জন্যই পরিষ্কার থাকবে, সেই বোধটা ওর এখনো আসেনি। হতে পারে সে নতুন ফ্ল্যাট কিনবে, কিন্তু জেনারেলি যেটা হয়ে আসছে, বাবা মার বাড়ি তার ছেলে মেয়েদেরই হয়। তো যেদিনকে বাবা বয়স হয়ে যাবে, তার ওনারশিপ চলে আসবে ওই বাড়িটার সম্বন্ধে, সে পরিষ্কার করবে কি করবে না? করবে। এখানেও এখানেও এই বিজনেসটাই আমার আপলাইন বাবার মতো এক্স্যাক্টলি আমাকে এখন বাধ্য করছে। আমার এখনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং আসেনি এই বিজনেসটা আমার, বাবা বলছে তাই আমরা শুরু করেছি বেচা বা বিক্রি করা। বাবা বা মা বলছে, না করতে পারছি না, তাই বিক্রি করছি। যেদিনকে ওনারশিপ চলে আসবে না, দিস বিজনেস ফর মি, এই ব্যবসাটা আমার, আমার পরে এই ব্যবসাটা আমার থেকে শুরু হয়, সেদিনকে আর বাবাকে বলতে হবে না প্রতি সপ্তাহে বাথরুমটা পরিষ্কার কর। যেমন করে বাবা আমাদের বয়স হয়ে যাওয়ার পর যখন ওই বাড়িটার ওনারশিপ আমার মধ্যে চলে আসে, ওই বাড়িটার বাথরুম পরিষ্কার করা, রং করা, মেনটেন করা, সবকিছু আমার দায়িত্বে চলে আসে এবং আমি ডেডিকেটেডলি ওটা করি, সেই দিনকেও কিন্তু আর বলতে হয় না, বাবাকে আর বলতে হয় না, মাকে আর বলতে হয় না। এখানেও সেম। তাহলে সেটা আগে জানুন, এই ব্যবসাটা কেন আপনার প্রয়োজন, কেন আপনার প্রয়োজন, সেটা আপনি যদি জেনে যাবেন, আপনার আজ থেকে আর আপনার আপলাইনকে ফোন করতে হবে না যে প্রোডাক্ট বিক্রি করো। আপনি ফোন করবেন এই প্রোডাক্ট কি গুণাগুণ আছে, এই প্রোডাক্টের কি আছে, আপনি ফোন করে, যাদের যাদের ওনারশিপ চলে এসছে তাদেরকে আর আপলাইনকে ফোন করতে হয় না যে তোমার পিভি কত, কাউকে করতে হয় না, আমি ডেফিনেটলি বলছি। যাদের মধ্যে এই ওনারশিপটা এখন আসেনি তাদেরকেই বলতে হচ্ছে। ওকে, নেক্সট, একটা মিডিল ক্লাস ট্র্যাপ আছে। মিডিল ক্লাস, আচ্ছা এখানে কে কে মিডিল ক্লাস? এখানে কে কে মিডিল ক্লাস? প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড। আপনি যদি নিজেকে রিচ ক্লাস মনে করেন হাত তুলতে হবে না। এভরিওয়ান, এভরিওয়ান। ওকে, থ্যাংক ইউ। মিডিল ক্লাসের কি ট্র্যাপটা আছে জানেন? মিডিল ক্লাসের লেন্থটা জানেন কেমন? অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টটা বলবো, অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্ট আজকে। মিডিল ক্লাস হচ্ছে, এইটা হচ্ছে রিচ ক্লাস আমরা ভাবি 4%, আর 4% আমরা লোয়ার ক্লাস ভাবি, আর এই মাঝখানে যতটা আছে না, এটা আমরা সবাই মিডিল ক্লাস ভাবি ভাবি अच्छा, हिंदी तो ही बोलছিলাম তখন। ओके, तो जो हम लोग बोल रहे थे कि इतना बड़ा मिडिल क्लास है, हम लोग सोचते हैं, देखिए कोई बंदा महीना में 10,000 इनकम कर रहा, वो भी मिडिल क्लास, और महीना में 5 लाख इनकम कर रहा, वो भी मिडिल क्लास। कैसे? कितना छेद है भैया इसके, इसमें कितना है, कितना है? बहुत बना लेते हैं हम लोग। एक्चुअली हमारे देश में 4% आर मिडिल क्लास, रेस्ट ऑफ अस लोअर क्लास। इट इज इल्यूशन, we thought that we are middle class, actually you are not. अंडरस्टैंड। तो ये मिडिल क्लास का एक ट्रैप है, ईगो है। सबसे ज्यादा ईगो किसका जानते हैं? मिडिल क्लास का। एक झुड़ी जाम जाम বা এক ঝুড়ি কলা, এক ঝুড়ি জাম বা কলা, দেখবেন তিনজন আছে, একজন লোয়ার ক্লাস, মিডিল ক্লাস, अपर क्लास। अपर क्लास बेचते কোনো অসুবিধা হবে না, अपर क्लास को वो बेचने में कोई फायदा
दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन वो नवरत्न तेल बेचता है। और लोअर क्लास को बोलिए, जो लोअर क्लास समझता है, खुद को समझता है, उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास को बेचने में दिक्कत है। क्यों? क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये दिक्कत है। ये मिडिल क्लास का एक ट्रैप है जहां हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हम लोग बेच नहीं पाते हैं। देखिए, हम लोग मिडिल क्लास सोचते हैं, एक्चुअल नहीं है। एक बंदा 1 लाख रुपया इनकम कर रहा है, एक बंदा 20 हजार इनकम कर रहा। किसी का 1 लाख का इनकम चला जाएगा तो वो कंपीट नहीं कर पाएगा। जो 20 हजार इनकम कर रहा था, उसका घर में दोनों मिलके मोटा मोटी 10-15 हजार इनकम कर लेगा, क्योंकि उसका कोई ईगो नहीं है, फॉल्स ईगो नहीं है। लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो कर रहा है, लेकिन उसमें भी करके वो 1 लाख कमाया जाता है। ये मिडिल क्लास का जो ट्रैप में जो पड़ जाएगा ना, बस वो लोअर क्लास में ही रह जाएगा। लोअर क्लास का जो इनकम थ्योरी है ना, उसमें हम लोग रह जाएंगे। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली वो लोअर क्लास हो जाएगा, रह जाएगा। उसका सोच, उसका फैमिली का जो सोच है ना, वो जो होल फैमिली का सोच है ना, वो लोअर क्लास का जैसा अंडरस्टैंडिंग रह जाएगा। इस ट्रैप में आप बस अब अगर फंस जाइएगा तो इस ट्रैप से हम लोगों को निकलना होगा। हम लोगों को मेंटलिटी, या तो लोअर क्लास, कोई भी कुछ भी बेचने में कोई हिचकिचाहट नहीं, या तो अपर क्लास। विराट को आज अभी बेचने बोलिए, कुछ भी बेचने के लिए वो कुछ दिक्कत नहीं होगा। वो बीड़ी भी बेच रहा है, साबुन भी बेच रहा है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको दिक्कत है, वो फॉल्स ईगो। और एक दिक्कत है, और एक दिक्कत है, हमको रीजन मिल गया क्यों हमको बेचना है, इस बिजनेस का जरूरत है। ये कम होता है लेकिन होता है। हमका मेरा पास एग्जांपल है, क्या जानते हैं? इस बिजनेस के ऊपर, इस प्रोडक्ट का ऊपर किसी का फेथ अभी तक उतना आया नहीं। इस बिजनेस के ऊपर और इस प्रोडक्ट के ऊपर, पहले तो प्रोडक्ट के ऊपर फेथ अब तक आया नहीं। किसी किसी का 5 साल हो गया, किसी किसी का 5 महीना हो गया, किसी किसी का 10 साल हो गया, फिर भी अभी तक ये फेथ और बिलीव आया नहीं। क्यों नहीं आया? गॉड नोज। इसलिए वो बेच नहीं पाता है, इसलिए सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए नहीं बेच पाता है। अभी भी जब बात करते हैं ना किसी किसी से, तो बात करके पता चलता है ये बंदा 7 साल हो गया बिजनेस में आ गया, अभी भी प्रोडक्ट के बारे में इसका फेथ नहीं है। ये ऐसे ही बेच दे रहा है, पुश सेल कर रहा है। ये जो कर रहा है 7 साल से, पुश सेलिंग, पुशिंग टू इंक्रीज द सेल। उसका दिमाग में कभी भी नहीं आया किसी कस्टमर को देने के समय कि इसका भला होगा इसमें। अगर आपका प्रोडक्ट के बारे में विश्वास नहीं आएगा तो ये जो श्लोक है ना, सर्वलोकम हितम, ये कहां से होगा? सर्वलोकम हितम तो इसका पास है ही नहीं। अपना हितम, सर्वलोकम नो हितम, अपना हितम पीपी बड़म, इनकम आयम, नो सामने वाला हितम। क्योंकि पता ही नहीं है इस प्रोडक्ट से उनका क्या भला हो सकता है। तो अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, understand the product value, quality. Value means not rupees. What this product can do of your affiliate friends and relatives. ये प्रोडक्ट काम करता है, बात करता है। First understand the product. First understand your upline, then understand the product. बिजनेस बाद में समझ लीजिएगा। जिस बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा है वो चलेगा, इसलिए 60-65 साल से चल रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या बेच रहे हैं हम लोग, क्या कर सकता है ये प्रोडक्ट, ठीक। और नेक्स्ट जो है, ज्यादातर प्रॉब्लम यहाँ पे होता है,
फियर, फियर, लोग क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, ना कर देगा, माना कर देगा तो, कुछ बोल देगा तो, कुछ सोच लेगा तो। जैसे मधुमिता दी को किसी ने बताया, जैसे हमको बताता था, তোদের তো কুলাই না, দুজনে চাকরি করিস, তোর বাবা চাকরি করে, তোদের তো কুলাই না, কুলাই না বলে তো চলেই না, কত করবি রে আবার, बोले बोले चलता ही नहीं लोगों का, चलता इतना कमा रहा फिर भी नहीं चल रहा, तो उसमें क्या लगता है, क्या बोल रहा है भाई, उसमें झटका लगता है ना। जब कोई ऐसा बताता है, क्या रे তোদের চলে না নাকি, ভালো র্যাঙ্কে চাকরি করে বল, তারপর তেল সাবান নিয়ে বেরিয়ে পড়লি, কি লাগে কি না, এখনো বেচছিস, হ্যাঁ এত টাকা কি করবে, এগুলো বলে কি না, বলে। এদের প্রত্যেককে পাল্টা একটাই প্রশ্ন করবেন, বল তাহলে কি করব, আমার এইগুলো দরকার। এদেরকে পাল্টা একটাই যদি প্রশ্ন, সেই মানে এরকম না তাদেরকে হার্ট করে, জানেন আমি একটা বন্ধুর বাড়িতে, কতক্ষণ হলো দেখি, তাহলে বাদ দিয়ে দেবো, হ্যাঁ আছে সময়। আমি একটা বন্ধু, ছোটবেলায় এটা ছিল এখন নাই, একই থালাতে বাটার মাখিয়ে আলু সেদ্ধ, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে যাবো, দেরি হয়ে গেছে টিউশনে, একই থালায় বসে ভাত খাচ্ছি, একই থালাতে, মানে একটা থালাতে ওই দিক খাচ্ছে আমি দিক খাচ্ছি, বাটার দিয়ে ভাত, আলু সেদ্ধ বাটার ভাত। সেই বন্ধুর ঘরে আমি প্রোডাক্টের ডেমো দেখাতে গিয়েছি, ভুল করে আমি বলে ফেলেছিলাম তখন শুরু জানিস এই ব্যবসা করে বিদেশ যাওয়া যায়, দেখো মাঝিরা কি বলছে, এই ব্যবসা করে বিদেশ যাওয়া যায়, ব্যাস কি পাপ করে ফেলেছি রে বাবা আমি। ও তো হলো, ডেমো তো দেখলো, দু চারটা প্রোডাক্ট তো নিল, এরপরে দুজন মিলে ওরা মিয়া বিবি মিলে আমাকে বোঝাতে শুরু করলো 3 ঘন্টা, কেন এই ব্যবসাটা করা উচিত নয়। আর তখন শুরু খুব বেশি সিটি শুনিনি, ज्यादा उतना सीडी नहीं सुने थे, तो वो समझा क्या तो लोगों को बोलता है, सीडी सुनने के लिए बोलता है ना, मीटिंग जाने के लिए बोलता है ना, सब कुछ पता है उसको, पेज मीटिंग होता है इन लोगों को, ऐसा ही बोलता है ना, हाँ ऐसे एटाई तो बोले, जो विश्वास होच्छे, अरे ये बंदा तो सब कुछ जानता है, लेकिन जो बंदा हमको बिजनेस में लाया उसको तो हम जानते नहीं थे, ये तो मेरा बचपन का लंगोटिया दोस्त है, ये सच बोल रहा है, वो बंदा तो ठीक नहीं बोला था, हमको फंसाया। तो मेरा कान ना लाल नहीं पीला हो गया था, लाल के बाद ऐसा, ये कान मेरा ऐसा है ना, ऐसा हो गया था, वो चूल्हा मेरा खड़ा खड़ा हो गया था 3 घंटा, 3 घंटा हमको समझाया कि बिजनेस क्यों नहीं करना था, और उसको पता था कि मैं फोटोग्राफी बहुत अच्छा करता था, उसी को कर, कुछ कर लेगा तू उसमें, ये छोड़ दे, तो आपको भी ऐसा बोलेगा। तो उस समय मैं बोल नहीं पाया था कि क्या करना है बोल, वो तो बोल दिया था फोटोग्राफी पर, लेकिन मैं फिर मेरा मेंटर के पास गया, बोला बंदा ऐसा बोला, मेरा मेंटर कुछ नहीं किया, बोला ई लिंक सुनो, तब सीडी नहीं था, ये ऐसा ही मेरा मेंटर के पास एक फोन था और मेरा पास भी ऐसा एक फोन था, तो ये ब्लूटूथ में भेज दिया, ले सुन, तो मैं जाते जाते लगा दिया, सुना, तो सुन के बोला ये दोस्त मेरा गलत बोल रहा है, तो मैं मेंटर के बात सुना था इसलिए कि भैया ये मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त ये बोला है, क्या करना चाहिए, तो कुछ नहीं समझाया, नहीं गलत बोल रहा, तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला, एक लिंक भेज दिया, थर्ड पार्टी इफेक्ट, मैं सुना और बोला नहीं ये छोड़। हाल क्या हुआ देखिए, जब मैं बाहर अब्रॉड जा रहा था इस बिजनेस के थ्रू, तो उस समय उस दोस्त का पास मैंने जाना आना लगा हुआ है, तो गया था, बोला नहीं, इसके बाद में बिजनेस क्या चल रहा है कुछ रह जाए, वो उसका सब खबर है, उस दोस्त का पास सब खबर है। जब वहां से घूम के आया, फिर एक दिन दुकान में गया, तो बोला अरे तू अब कुछ नहीं बोलता है, क्या करता है, कुछ भी हम लोग को बोलता है, इतना अच्छा दोस्त है, बचपन का लंगोटिया दोस्त है, हम लोगों को नहीं बोलता है, दूसरे किसी दोस्त से सुनना पड़ता है, क्या बोल, तू तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा, बाहर भी गया है, लौट के आ गया, बोला नहीं, नहीं कैसा कोई मतलब কিছু প্রসঙ্গ আসেনি তাই তোকে বলা হয়নি, হ্যাঁ প্রসঙ্গ আসেনি, দোকানে আসছিস বলছিস না, नहीं नहीं बहुत अच्छा काम किया, 3 घंटा समझाया था, 3 घंटा समझाया था कि नहीं करना चाहिए था,
आज बोल रहा बहुत अच्छा किया, तू कर सकता है, अच्छा कर रहा। तो मैं उस दिन अगर उसका बात सुन के, क्योंकि लिंगोटिया दोस्त है वो, और मेरा मेंटर जान पहचान उतना था नहीं, किसका बात सुना था उस दिन? दोस्त का बस, मेंटर का बस। कहां से शुरू किया था? तो फियर फियर। तो ऐसा बात कुछ बोलेगा, इस बात को लेके आप चलिएगा, तो क्या क्या आपको बेचना होगा आप आज सुनिए। वो सब जितना भी बताता है, जो भी फियर आपका है, ये बोलता है, वो बोलता है, ये पत्ता है, वो पत्ता है, ये सब बोलता है, जो भी बोलता है, ये सब सुनिएगा। तो क्या क्या आपको बेचना पड़ेगा सुनिए। बस में चढ़ते हैं, अरे 20 रुपया क्यों, 15 रुपया लो। क्या बेच रहे हैं? आपका सेल्फ इमेज। आपका सेल्फ इमेज बेच के 5 रुपया में, आपका सेल्फ इमेज, आपका इज्जत 5 रुपया में बेच रहे हैं आप। ये बेचना इजी है कि प्रोडक्ट बेचना इजी है? बस में सब कोई देख रहा है, और 5 रुपया लिए आप हिचकिचाहट कर रहे हैं, 5 रुपया तो 5 रुपया है, आने का टाइम 15 लिया था, आप जाने का टाइम 20 क्यों ले रहे हैं? बोलता है ना ऐसा। क्या बेच रहे हैं आप? अपना सेल्फ इमेज बेच रहे हैं 5 रुपया के लिए। अच्छा है, अच्छा है, तो बेचिए, वही बेचिए। और उन लोगों का दोस्त का बात सुनिए, छोड़ दीजिए बिजनेस, मत बेचिए प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये तो चलता है। आप उन लोगों का बात सुन के, आपका बच्चा जिस ट्यूशन मास्टर का बस पढ़ने से आपका बच्चा पढ़ाई अच्छा होगा, या तो जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने से पढ़ाई अच्छा है, आपको पता है वहां पे आप पढ़ा नहीं पा रहे हैं, आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं आप? आपका जो हार्ट है ना, हार्ट, अपना बच्चा अपना हार्ट होता है, उनका फ्यूचर बेच रहे हैं आप, उनका भविष्य बेच रहे हैं आप। आज 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 बैठ के आप फ्यूचर बेच रहे हैं, आपका नेक्स्ट जेन का फ्यूचर बेच रहे हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो बेचिए। आपका मम्मी पापा जिसने जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया है, धरती पे लाया है, जिस डॉक्टर के पास दिखाने से आपका मम्मी पापा अच्छा रहेगा, वहां पे ना दिखा के दूसरा कहीं पे दिखा रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? अच्छा लगता है तो बेचते रहिए। जॉब पे मेरा एक दोस्त है, जिसका मिसेस आज से 15 साल पहले चला गया। एक बच्चा है, वो एमआर है, एएसएम है, अभी वर्धमान में रहता है। काजोल बोल के फोन लगा सकते हैं। सुबह निकलता है, रात को 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, कब आएगा नहीं पता। फ्रस्ट्रेटेड हो गया। 20 लाख एनम उसका पैकेज है। किसका एक्सचेंज करके वो कमा रहा है? क्या बेच के वो कमा रहा है? फ्रस्ट्रेटेड हो गया बंदा। मैं एक दिन आईसीआईसीआई बैंक में गया था कुछ दिन पहले। मेरा जान पहचान खोकुन बोल के एक लड़का है, अभी आसानसोल में रह रहा। आधा घंटा मेरा बैंक में काम था। जानते हैं क्या बेच रहा था उसपे? वो लड़का ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे करके, और सामने एक लड़का खड़ा था, उसको भी जरूर मतलब मजबूरी है। क्या क्या गाली बक रहा था, क्या क्या गाली नहीं बक रहा था। थोड़ा सा शाम हो गया था, उसको लग रहा था अभी कोई कस्टमर नहीं आएगा। क्या क्या बोल रहा था। 15 हजार के लिए अपना जमीर बेच दिया।
अपना इज्जत बेच दिया। वो अच्छा है कि प्रोडक्ट बेचना अच्छा है? और ये बेच बेच के आप क्या कर पाइएगा? ये बेचने का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन सामान बेचने का कोई लिमिटेशन नहीं है। एमबे का सामान कोई लिमिटेड नहीं है, कितनों बेच सकते हैं आप। और यहाँ पे इज्जत, जमीर बेचने का एक लिमिट है, कुछ हद तक बेच सकते हैं। कोई कोई ऐसा है वो अपना सब कुछ बेच दिया और उसी को पता नहीं वो सब कुछ बेच रहा, लेकिन बाकी सबको पता है वो क्या क्या बेच रहा है। वो बेचना अच्छा है कि ये बेचना अच्छा है? आप सोचिए और फिर डिसाइड किए क्या बेचना है। वो बेचना अच्छा है कि ये बेचना अच्छा है? कहीं पे एक बार सुना था, दुनिया में कुछ भी बेचिएगा उसके लिमिटेशन है। कुछ भी आप बेचिए, समय बेचिएगा, जो भी बेचिएगा, जो भी अभी डिस्कस किया गया है, आप कॉम्प्रोमाइज कितना कर सकते हैं पापा का मतलब हेल्थ हेल्थ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? वहां पे एक लिमिटेशन है। और सामान बेचने का कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, यू कैन सेल। लास्ट में एक स्टोरी बोल के मैं खत्म करूंगा, शायद मेरा टाइम हो गया है। हाँ हो गया, 1 मिनट और। एक स्टोरी है, मैं थोड़ा सा उसको अलग करके बता रहा हूं। एक घोड़ा को, जैसे आप लोगों को बताता है, जैसे आप लोगों को बताता है, ऐसा ही कोई बंदा वो घोड़ा बिजनेस शुरू किया था। उसको एक गड्ढा खोद के किसी ने गिरा दिया। तो उस स्टोरी को मैं थोड़ा सा टेम्पर कर रहा हूं। किसी ने गिरा दिया और गिरा के उसको क्या कर रहा, दफना दे रहा। सब कोई उसको बात बोल के दफना रहा है। मतलब एक घोड़ा को मट्टी में गड्ढा करके गिरा दिया, जिंदा है बंदा, आप जैसा जिंदा है, और गिरा के मिट्टी से दफना रहा है, मिट्टी से दफना रहा है। तो वो कुछ देर तक वहां पे था, आपका जैसा, कि नहीं यही मेरा जिंदगी है, ऐसे हमको चलना है, हो गया मेरा जीवन खत्म। कुछ देर तक मिट्टी इतना तक हो गया, फिर वो सोचा कि नहीं, कुछ करते हैं। तो वो झटका लगा उसको, जैसे आज आपको किसी को झटका लग सकता है, हो सकता है लगा है किसी को। तो झटका लगा के वो उठा, और उठ के वो थोड़ा थोड़ा सेक किया, और उसका शरीर में जो था, पैर तो गड़ गया था, जैसे हम लोगों का भी गड़ गया कहीं पे, कहीं पे, कहीं नौकरी पे, किसी का फैमिली पे, कहीं पे गड़ गया है इतना तक। तो उतना झड़ा और इसको थोड़ा सा दम लगाया, उस हद तक जितना दम था, मतलब तब उम्र उतना हुआ नहीं था। हम लोग अभी उतना उम्र हुआ नहीं कि मैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं अभी से। तो झटका लगा के गिरा, और जितना बात वैसे बोल रहा था, जैसे मिट्टी डाल रहा था, हाँ हाँ। तो आप भी कल बेचने जाइएगा तो मिट्टी लेके कोई ऐसा आपके ऊपर डालेगा, तो आपको क्या करना है? हाँ, গা ঝাড়া দিয়ে ফেলবেন। এবার ওইগুলো কি হবে? জমবে। ও গাড্ডার মধ্যে কি হবে? জমবে। তাহলে যারা গাড্ডা করেছিল তারাই গাড্ডাটা ভরছে, আপনাকে হেল্প করছে। তাহলে ওইটাকে আপনার কি হিসাবে কাজে লাগাতে হবে? যে কথাগুলো আপনাকে বলছে আজকে, গা জ্বালানো যে কথাগুলো বলছে, সেগুলো কি হিসাবে কাজে লাগতে হবে? সিঁড়ি। আপনি কি করছেন? মাটিগুলো ফেলছেন আর ওটা পা দিচ্ছেন ওটার উপরে, হ্যাঁ, বেলচা ফেলছে আবার চাপছেন ওর উপরে। এইভাবে ওই কথাগুলোকেও আপনাকে সিঁড়ি বানাতে হবে। ওই কথাগুলোই আপনাকে একদিন উপরে তুলে দেবে। যাদের 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 ওই কথাগুলোকে সিঁড়ি বানাবেন, তারা একদিন উপরে উঠে আসবেন ওই গাড্ডা থেকে। যারা যারা মনে করছেন গাড্ডায় ফেসে আছেন, আর যারা যারা মনে করছেন আমি মিডিল ক্লাস, দারুণ চলছে, চলতে থাকুন আর ওইগুলো বেচতে থাকুন, যেগুলো একটু আগে বললাম। থ্যাংক ইউ, নাইস টকিং টু ইউ।
সত্যি কিছু বলার নেই, অসাধারণ। ওই সুশান্ত যখন বলছিল না, তখন আমি নিজের লাইফের কথাটা ভাবছি যে এইগুলো সত্যি আমাদের ক্ষেত্রে হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। হ্যাঁ, এখনো